Hi everybody, myself Vandana Yadav and I'm pursuing LLB from the University of Delhi. मेरा सेकेंड ईयर है अभी और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज मैं बात करूँगी जेरूसलेम के बारे में, द सिटी ऑफ जेरूसलेम। इस वीडियो में हम जानेंगे वाई इज़ द सिटी ऑफ जेरूसलेम सो इम्पॉर्टेंट, क्यों पिछले 70 सालों से इस सिटी को लेकर वॉर हो रहा है बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टीन, क्यों दुनिया के 3 रिलीजन्स जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इस पर अपना राइट क्लेम करते हैं, व्हाट इज़ द स्टेटस एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द सिटी। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में हम। So Jerusalem is a city situated in Western Asia on a plateau in the Judean mountains between the Mediterranean and the Dead Sea. This place is considered holy to the 3 major religions, Judaism, Christianity and Islam. Jerusalem is an ancient city of the Middle East and it has been holy under the rule of the State of Israel since 1967. Let us know how the city of Jerusalem got divided into East Jerusalem and West Jerusalem. So in the early 20th century, the city became the focus of the competing national aspirations of the Zionists and the Palestinian Arabs. And the struggle often erupted in violence. As a step to avert any further conflict, the United Nations attempted to declare the city as a corpus separatum, that is, as a separate nation. But the first Arab-Israeli war in 1948 left Jerusalem divided into the West Jerusalem, which is called Israeli, and the East Jerusalem, which is the Jordanian. The status of the city remained a central issue in the dispute between Israel and the Palestinian Arabs, who claim East Jerusalem as the capital of a future Palestinian state. Talking about the character of the city, Jerusalem plays a central role in the spiritual and the emotional perspective of the 3 major monotheistic religions, Christianity, Judaism and Islam. For all these 3 faiths, it's the center of pilgrimage and an object of devotion. Jerusalem has a very diverse and a cosmopolitan character. Coming to the status of Jerusalem, so it is a disputed land in both international law and the diplomatic practice, with both the Israelis and the Palestinians claiming Jerusalem as their capital city. There have been conflicting claims to sovereignty over the city of parts of it and access to its holy sites. The main dispute revolves around the legal status of East Jerusalem and especially the old city of Jerusalem. It's unbelievable that पिछले 70 सालों से इस पीस ऑफ लैंड के लिए, जेरूसलेम के लिए एक वॉर चल रहा है। कौन इसका कैपिटल, किसका कैपिटल बनेगा और किसका कंट्रोल रहेगा इस पर। इसको देखने के 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वन इज़ फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अदर इज़ फ्रॉम द लैंड और द बॉर्डर डिस्प्यूट पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जो जेरूसलेम जितनी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो 3 रिलीजन्स हैं, दैट इज़ जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जो इस पर अपना राइट क्लेम करते हैं, इनमें एक कॉमन बात यह है कि इनकी जो होली बुक्स हैं, दैट इज़ तोरा, बाइबल एंड कुरान, इन तीनों ही बुक्स में एब्राहम एंड जेरूसलेम की बात होती है। सो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 4000 ईयर्स बिफोर, दैट इज़ लॉन्ग अगो, एब्राहम, जिनको इन तीनों ही रिलीजन्स का फादर कहा जाता है, हैड 2 sons, इश्माइल एंड आइसैक। इश्माइल इज़ द प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम्स एंड आइसैक जूज एंड क्रिश्चियंस के इम्पॉर्टेंट फिगर थे। Now let us talk about what is Jerusalem called as in these 3 different religions, as in by what name. Jews इसे यरूशलेम कहते हैं, मुस्लिम्स इसे अल-कुद्स कहते हैं और क्रिश्चियंस इसे सालेम कहते हैं। अगर हम जूस की बात करें तो जेरूसलेम उनके लिए होलीएस्ट साइट है और यहाँ वो उनका स्पिरिचुअल होमलैंड है, जहाँ पर उनके कई टेम्पल्स हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो जेरूसलेम उनकी 3rd होलीएस्ट साइट है आफ्टर मक्का एंड मदीना, और यही है डोम ऑफ द रॉक, जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत गए थे। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो यहाँ पर है चर्च ऑफ द होली, द चर्च जहाँ पर जीसस वॉज क्रूसिफाइड। हाउ इज़ एब्राहम रिलेटेड टू जेरूसलेम एंड हाउ डिड द जूज रीच हियर? So, according to an Old Testament, God said to Abraham and his people to go and settle in a city which in modern day is called Israel. इस एरिया का प्रीवियस नाम था कैनान।
जूस इस कंट्री को लैंड ऑफ इज़राइल कहते हैं। 1000 BCE में किंग सॉल ने यहाँ पर अपनी इज़राइली किंगडम स्टैब्लिश की थी। किंग सोलोमॉन फर्स्ट जूइश टेम्पल बनाया गया जेरूसलेम में ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग सोलोमॉन, और जूइश कनेक्शन के लिए नाम रखा जुडा। आफ्टर किंग सोलोमॉन्स डेथ जेरूसलेम गॉट डिवाइडेड इनटू इज़राइल एंड जूडिया। अब हर किंगडम की तरह इसे भी अलग अलग लोगों ने रूल किया। पर्शियंस आए, ग्रीक्स आए, रोमन्स आए, अरब्स आए, इजिप्शियंस आए। जब रोमन्स यहाँ आते हैं तो जूइश कनेक्शन को कट ऑफ करने के लिए वो इसका नाम बदलते हैं। जुडिया से इसका नाम कर दिया जाता है पैलेस्टीन। द वर्ड पैलेस्टीन कम्स फ्रॉम फिलिस्टिनिक, दैट इज़ अ लैंड ऑफ फिलिस्टीन्स इन्वेडर्स। रोमन एम्पायर में जूस के साथ बहुत त्रासदी की जाती है। यहाँ पे वाइड स्प्रेड परसिक्यूशन होता है। धीरे धीरे उन्हें इस एरिया से निकाल दिया जाता है। तो जूडिया के जूस निकलकर यूरोप के अलग अलग शहरों में बस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ परसिक्यूशन, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन और मास मैसेकर किया जाता है। तो 11th सेंचुरी में द क्रूसेडर्स एक्सपेल्ड जूस फ्रॉम फ्रांस। स्पेन में भी उनके साथ ग्रेनाडा मैसेकर हुआ, जहाँ पे 4000 जूस डाइड। इसके 14th सेंचुरी में यूरेशिया एंड अफ्रीका में एक प्लेग फैलने लगा था जिसका नाम था ब्लैक डेथ, जिससे यूरोप की लगभग आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। इसका ब्लेम भी जूस पर डाला गया। 900 Jews were burnt alive. In the 17th century, Yemen also discriminated against Jews, जिसे मावज़ा एग्ज़ाइल कहते हैं, जिससे यमन में रह रहे सारे जूस को एक रेगिस्तान में भेज दिया गया एंड दे वर लेफ्ट टू द मर्सिलेस कंडीशंस। नेक्स्ट कम्स इटली में 18th सेंचुरी में जूस को रहने के लिए एक लिमिटेड एरिया दिया गया और फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाया जाता है। 1897 में आते हैं। इन सब चीज़ों से तंग आकर थियोडोर हर्जल ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था ज़ायोनिज़्म, दैट इज़ द स्टेट ऑफ जूस। सो अकॉर्डिंग टू ज़ायोनिज़्म, जूस का अपना एक स्टेट होना चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए जहाँ पर वो शांति और इज़्ज़त से रह सकें। और इसी मूवमेंट में ये डिसाइड किया गया कि पैलेस्टीन में ही जूइश होमलैंड बनाना चाहिए, और इसके बाद ही जूइश माइग्रेशन शुरू हो जाता है टूवर्ड्स पैलेस्टीन। Before the World War I, Palestine was under the control of the Ottoman Empire, but after World War I, it came under the control of the Britishers. During World War I, Britishers ने एक ही piece of land के लिए 3 लोगों से 3 अलग अलग agreements किए. So were the Britishers. For example, Arabs को उन्होंने मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस के अंडर प्रॉमिस किया कि World War I के बाद वो उन्हें वो piece of land उनको दे देंगे. उन्होंने बैलफोर डिक्लेरेशन, इसमें उन्होंने जूस के साथ एक अग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड्स एक जूइश होमलैंड बना सकते हैं। साइक्स-पाइकॉट अग्रीमेंट के अंडर उन्होंने फ्रांस के साथ अग्रीमेंट किया था कि ये एरिया दैट इज़ द सेम पीस ऑफ लैंड जो वो जूस को और इसके पहले किसको देने वाले थे, उनको और फ्रांस दोनों के कंट्रोल में रहेगा। सो ब्रिटिशर्स ने जो प्रॉमिस अरब्स के साथ किया था, इसके हिसाब से पूरा का पूरा पैलेस्टीन उनके कंट्रोल में रहेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉमिस उन्होंने जूस के साथ किया था उसके हिसाब से पैलेस्टीन में एक जूइश नेशनल होम बनाया जाएगा। इसी कारण जूइश इमाइग्रेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद होता है वर्ल्ड वॉर II का होलोकॉस्ट, जिसमें करीब नहीं 60 लाख जूस को मारा गया। इस कारण US, रशिया एंड पैलेस्टीन में जूइश इमाइग्रेशन एकदम से बढ़ जाता है। वर्ल्ड वॉर II जब तक ख़त्म हुआ तब तक 33% ऑफ पैलेस्टीन बिकेम जूइश। 1947 में जब कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस तब ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस के हाथों सौंप देते हैं और यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जूस के लिए इज़राइल था और अरब्स के लिए था पैलेस्टीन। Following this partition, Jews established a country named Israel, whose first prime minister was David Ben-Gurion. जिसके बाद इजरायलीज़ एंड अरब्स के बीच में 30 सालों तक कोई ना कोई वॉर होता रहा और इसमें ऑलमोस्ट हर बार इज़राइल की जीत हुई। 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ एंड इज़राइल डिफीटेड द अरब नेशंस। अब दोनों इज़राइल एंड पैलेस्टीन हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस कनेक्शन की वजह से जेरूसलेम को ही अपना कैपिटल क्लेम करते हैं।
पर 1967 के 6 डे वॉर के बाद मोस्ट ऑफ द जेरूसलेम्स कंट्रोल इज़ विद इसराइल, इंक्लूडिंग द ईस्ट जेरूसलेम प्लस द ओल्ड सिटी। 1987 में होता है फर्स्ट इंतिफादा, जिसमें पैलेस्टीनियन इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। इसी बीच इसराइल 2 अग्रीमेंट साइन करता है, 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड, बट इनका कोई सोल्यूशन नहीं आता है। इस वजह से 2000 और 2005 के बीच हुआ सेकेंड इंतिफादा, विच वॉज वेरी वायलेंट, रायट्स प्लस सुसाइड बॉम्बिंग्स प्लस अटैक्स। पैलेस्टीन में 3000 लोग मारे गए और इसराइल में 1000 लोग मरे। ये वही टाइम था जब एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हमस वॉज बीइंग पॉपुलराइज्ड टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल्स राइट्स। सेकेंड इंतिफादा के ख़त्म होने तक इसराइल गाज़ा से हट चुका था और टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड लॉन्च किया था। 2006 में हमस विन्स द इलेक्शंस एंड डिमांड्स ओल्ड बॉर्डर्स। हमस ऑल्सो रिफ्यूज़ेस टू एक्सेप्ट इसराइल एज अ स्टेट। हमस द्वारा अपनाए गए तरीक़ों जैसे सुसाइड बॉम्बिंग्स की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानती हैं। अब चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया की नज़रें जब पैलेस्टीन और इसराइल पर हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे में दोनों के बीच कोई पीस एग्रीमेंट हो पाएगा या अब भी वो 2 स्टेट नेशन बन सकते हैं? दिस इज़ स्टिल अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। थैंक यू।